learn about tense. So do you know about verb? What is verb? Verb shows action, just like come, go, read, play. Here we can see the examples of verbs. Verb just like play and read. So do you know about something? Verb shows three tenses. Verb shows three tenses. Which three tenses? First tense is present tense, second tense is past tense, and third tense is future tense. So each tense has four forms. Each tense, हर एक टेंस जो है वो चार तरीके से बनाया जाता है. जो टेंस है, जो सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करते हैं, तो टेंस में हम चार फॉर्म का यूज करते हैं. वी विल यूज फोर फॉर्म्स इन ईच टेंस. सो फर्स्ट फॉर्म इज इंडेफिनिट और सिंपल टेंस. सेकेंड फॉर्म इज continuous tense, and third form is perfect tense, and fourth form is perfect continuous tense. So now we will learn about the first form of present simple or present indefinite tense. So first form, simple present or present indefinite tense. This tense shows an action that occurs in the present tense. ये जो टेंस है ये ऐसे एक्शन को शो करेगी जो प्रेजेंट टाइम में हुआ है. दिस शोज एन एक्शन विच ऑकर्स इन प्रेजेंट टाइम. सो वी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वी कैन यूज वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर जस्ट लाइक affirmative sentence structure, negative sentence structure, and interrogative sentence structure. Affirmative sentence, do you know about affirmative sentence? Affirmative sentence is positive sentence. And negative sentence include not in this sentence. So interrogative sentence include a question word just like what, where, do, does, and who. This type of question words are used in interrogative sentence. So affirmative sentence. For the formation of affirmative sentence we have structure. Which structure? Subject. Do you know about subject? Subject, just like subject in place of subject we can use he, she, it, name, I, we, you, they. These are all subjects. And verb in first form. We have verb three form. Verb first form, verb का second form, and verb का third form. So in the affirmative sentence of simple present tense we can use our verb first form. Verb first form and plus s and es plus object. Which object? Object is which subject क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है. जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के प्लेस में हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे. तो जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट को हम स्मॉल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा बन गया, बहुत लार्ज हो गया, अगर आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप सब्जेक्ट को एस में लिख सकते हो और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसे V1 से डिनोट कर सकते हो और ब्रैकेट में एस और एस को लिखोगे फिर प्लस ओ लिखोगे. अभी हम बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर की हेल्प से किस तरीके से हम नए सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. बट सेंटेंस बनाने से पहले we have to know about the negative sentence structure and interrogative sentence structure. After that we will start the forming sentences. So negative sentence structure. Negative sentence structure is subject plus do does. This do does is helping verb of present indefinite tense. So every tense is helping verb. जितने भी टेंस होंगे सभी टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है. जैसे सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है? डू एंड डज. तो सब्जेक्ट के बाद हम डू डज प्लस करेंगे, फिर डू डज के बाद हम नॉट प्लस करेंगे, फिर प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हम इंटेरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं. व्हाट आर इंटेरोगेटिव वर्ड? Interrogative words are just like what, where, who, how. These are interrogative words. So first of all we will use interrogative word. After that we can add do does. After that subject plus verb first form plus
object. Ready. So now we will discuss about the rules for forming sentences. तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं. So if we are using he, she, it, name and singular noun as subject, then we have to add s at the end of word. अभी आपने देखा था स्ट्रक्चर में, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर देख रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो आपने देखा था एड एस और ईएस. सो हाउ वी विल एड एस ईएस इन द सेंटेंस फॉर्मेशन. तो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एस और ईएस उन्हीं सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, उन्हीं वर्ब के साथ जोड़ना है जिनमें सब्जेक्ट कौन कौन से हो, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन का अगर यूज किया जा रहा हो एज अ सब्जेक्ट, तभी हम लोगों को इस्तेमाल करना है एस और ईएस. इसके बाद एक और जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कि हमें डू का इस्तेमाल किसके साथ करना है और डज का इस्तेमाल किसके साथ करना है. तो याद रखना, हमें डू का इस्तेमाल उनके साथ करना है जिनमें सब्जेक्ट के तौर पे आई हो, वी हो, दे हो, यू हो और प्लूरल नाउन. तो याद रखना, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन को जब हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू का इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद जो डज है, डज का इस्तेमाल, जो डज हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब सब्जेक्ट के तौर पर ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो, तभी हम लोग डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. सो अभी हम लोगों ने रूल्स के बारे में पढ़ा कि जो एस और ईएस है उसको किस वर्ब के साथ जोड़ना है और डू और जो डज हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल किसके साथ करना है. तो अभी हमने जो पढ़े हैं उन रूल्स को अप्लाई हम कहाँ पे करेंगे, सेंटेंस के फॉर्मेशन में. तो चलो हम अब सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, वो इस स्ट्रक्चर के बेसिस होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ओ. मान लो आपने एक सेंटेंस अपने मन में बनाया, जैसे मैं खाना खाता हूँ या मैं पानी पीता हूँ. सेम वैसे ही हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एक सेंटेंस का, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई. तो आई का क्या है, आई एक सब्जेक्ट है. तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, आई. तो मैं की जगह हम आई यूज कर रहे हैं. इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब ये बताओ, ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें जो वर्ब है वह खेलता हूँ. खेलता हूँ मतलब प्ले. तो यहाँ पे आई प्ले, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब ये सोचो, हमने इसमें एस और ईएस क्यों नहीं ऐड किया. हमने इसमें एस और ईएस इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई के साथ हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं. हम एस और ईएस किस में ऐड करते हैं, ही, शी, इट और नेम के साथ ही हम एस और ईएस को ऐड करते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आई है, इसीलिए हमने सिर्फ नॉर्मल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है जिसमें हमने एस और ईएस को ऐड नहीं किया. इसके बाद एस और ईएस के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मैंने कहा था कि नाउन होता है. अब यहाँ पे नाउन क्या है, क्रिकेट. तो क्रिकेट क्या है, एक नाउन है. तो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हम क्रिकेट होगा. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के तौर पे आई लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखा, एस और ईएस का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते. इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हुआ है वो हमारा क्रिकेट है. तो अब हमारा सेंटेंस कैसे बन गया, आई प्ले क्रिकेट. सेम ऐसे ही अगर मान लो मैंने सोच लिया मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता. अब आप इसे कैसे बनाओगे, मैं क्या है, आई. इसके बाद वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा हमारा, खाना खाना. खाना खाना मतलब ईटिंग, आई ईट. इसके बाद क्या होगा, जो खाना होगा, खाना क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब ये जो खाना है ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है. तो आई ईट फूड. अब इसमें हम एस ई एस क्यों ऐड नहीं किए, एस ई एस हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये जो आई है इसके साथ हम आई एस या ई एस ऐड नहीं करते. अब मान लो हमने बोला वह पढ़ता है, ही रीड. तो हम क्या बनाएंगे, ही रीड. ही रीड क्यों बनाया, क्योंकि ही रीड्स क्यों होगा, ही रीड्स क्यों होगा, ही क्या है, सब्जेक्ट है और जो रीड है वो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा. तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी ही, सी, इट, नेम का यूज एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, एस या ई एस को जोड़ना है. अगर मान लो वह पढ़ता है, उसको अगर आपने बना दिया ही रीड बना दिया और अगर आपने उसमें एस या ई एस को ऐड नहीं किया तो वो
सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें जब भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम आएगा तो हमें उसमें वर्ब के बाद क्या जोड़ना है? एस या ईएस जोड़ना है। जैसे मैंने बोल दिया मोहन गाना गाता है, मोहन गाना गाता है, तो मोहन क्या बन गया? मोहन सब्जेक्ट बन गया। तो सबसे पहले हम मोहन करेंगे, फिर गाता है, इसमें वर्ब क्या होगा? वर्ब गाता है होगा। तो गाता है क्या होगा? सिंग, ही, मोहन सिंग्स। इसके बाद क्या होगा? गाना गाता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के तौर पे गाना आएगा, तो मोहन सिंग्स सॉन्ग। हमें इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद चलो हमारा जो सेकेंड सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वो होगा निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया है? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो मैं तो क्या होगा? मैं होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये जो मैं है इसको इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? आई। तो मैं की जगह क्या होगा? आई आएगा। इसके बाद खेलता हूँ, ये खेलता हूँ क्या होगा? ये खेलता हूँ जो है, ये जो खेलता हूँ ये क्या बन जाएगा? ये खेलता हूँ बन जाएगा वर्ब। तो आपको भी पता है कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आते हैं तो हम हमेशा किसका, कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? हम हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब सब्जेक्ट आई आ गया तो आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का डू का इस्तेमाल किया, और नहीं है तो आई डू नॉट क्या यूज कर रहे हैं? आई डू नॉट। जैसे डू डज का इस्तेमाल करना है, मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया? सब्जेक्ट के बाद डू डज ऐड करना है, तो हमने आई के लिए डू का इस्तेमाल किया, इसके बाद हमने प्लस नॉट किया, इसके बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो होगा खेलता हूँ। खेलता, वर्ब क्या है इसमें? खेलता हूँ, खेलता हूँ है ना, इसीलिए हम आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद क्या होगा? इसमें याद रखना जो एस और ईएस है, एस और ईएस किस में जुड़ता है? सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस नहीं जोड़ते हैं, चाहे वो ही, शी, इट, नेम हो, चाहे वो आई, वी, इफ, यू, दे हो। कोई भी सब्जेक्ट का यूज किया जाए, हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। एस और ईएस का यूज सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में ही किया जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट आई आ गया, इसके बाद डू आ गया। सब्जेक्ट आई है ना इसलिए डू आया, फिर नॉट हमने ऐड कर दिया, फिर वर्ब क्या होगा? वर्ब खेलता हूँ, उसके लिए हमने प्ले कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट है, तो क्रिकेट यहाँ पे आ गया। फिर इस तरीके से हमने एक सेंटेंस का फॉर्मेशन किया। उस सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद जो हमारा लास्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, वो लास्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड्स, अब अगर मान लो सपोज दैट आप किसी ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड को एक्सक्लूड कर देंगे और हम ये सेंटेंस का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डू डज से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगर मैंने एग्जांपल क्या लिया? मैंने एग्जांपल लिया है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या मैं के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू, मैं के लिए हम आई, इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, अब क्या है? डू हमने लगा दिया, डू के बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आई आ गया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के लिए खेलता हूँ आया। खेलता हूँ क्या है? एक तरीके का वर्ब है। तो डू आई प्ले, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्रिकेट का है, तो क्या बन गया ये? डू आई प्ले क्रिकेट। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना। इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।